Uh, Good afternoon, students. Hope you all are doing well. Today we have further start the revision chapter number 3. Open your classwork notebooks as well as your book. Open the book page number 48. Today we done questions of chapter number 3. Write down the date on your notebook. Chapter name. Chapter number 3, elementary concept of object and classes. Object and classes. Okay, student, in this chapter we will revise that objects in Java, difference between object and classes, class in Java, and properties of class and object. Now write down the question section A. Question section A. What is class? What is class? Question number 1. What is class? Yes. Classes in Java are non-permittive data type. We know that there are the two type of data types. First is permittive, second is non-permittive. So classes in Java are non-permittive data types that act as blueprint for creating object of the same type. Now write down the question number 2. What are the different components? What are the different components of an object? What are the different components of an object? We know that there are the different components like characteristics, attributes. Third one is behavior. Okay, there are the different type of components, characteristics, attributes, and behavior. Now write down the syntax to create an object. Write down the syntax to create an object. First, the syntax of creating. First we have a class name. जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ बनाए सभी बच्चे. Object name बनाओ जल्दी से इसके एग्जाम्पल. मैं आपको हिंट दे रही हूँ. उसके बाद न्यू के बाद आएगा आपका कंस्ट्रक्टर. देन लास्ट में सेमी कॉलन. एग्जाम्पल में लिख लो. फॉर एग्जाम्पल क्लास का नेम क्या ले लिया हमने? बुक कंप्यूटर. ऑब्जेक्ट हमने क्या ले लिया? न्यू बुक. कंस्ट्रक्टर हमने क्या ले लिया? पैरामीटर. ओके. फॉर एग्जाम्पल बुक कंप्यूटर इज इक्वल टू न्यू बुक. साथ में क्या आ जाएगा? पैरामीटर. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट. आपकी बुक में भी है. डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट. क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, बट ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. Book page number 49. There are the difference from your book. Learn from your book. Class is the blueprint from which objects are created, but object is instance of a class. It is a logical entity that define the attributes and behavior. It is a physical entity. This is a logical. This is a physical entity. No memory space allocated. Memory space is allocated. A class is defined once and can be used to create a many objects is needed. क्लास एक ही बार बनती है, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट्स हम कितने सारे क्रिएट कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं ईच टाइम इंस्टॉलिंग फ्रॉम अ क्लास. हर बार अगर हमने इसमें इनिशियलाइज करना हो, ठीक है, तो क्लास में ऑब्जेक्ट को हर बार क्रिएट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. What is user defined data types? What is user defined data types? We know that a user defined data type is a derived data type depending on some existing data types. I repeat,
A user-defined data type is a derived data type depending on some existing data types. Question number 6. Write a statement to create an object computer of the class subject. Write a statement to create an object computer of the subject. कोई भी अगर हम कुछ भी सब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, सिक्स्थ आंसर, तो फर्स्ट वी हैव, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट क्या लेना है, सब्जेक्ट हमें उन्होंने क्या बोला है क्रिएट करने के लिए, कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम करते हैं ना स्कैनर, ऐसे इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, तो ऐसे ही सब्जेक्ट कंप्यूटर इज इक्वल टू न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद कंस्ट्रक्टर मीन्स पैरामीटर, लास्ट में आ जाएगा सेमीकोलन। ये सिक्स क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने अभी करवाया आपको। राइट अ स्टेटमेंट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कंप्यूटर ऑफ द क्लास सब्जेक्ट. Subject computer is equal to new subject because scanner s is equal to new scanner system dot in. That's why we create a subject computer is equal to new subject. Next question. Question number 7. What is the message passing in Java object? What is the message passing in Java object? क्या मैसेज पास होता है जावा ऑब्जेक्ट में विद द हेल्प ऑफ डाटा टाइप? वही मैसेज पास इन विद द हेल्प ऑफ कोड लाइक अ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और प्रिंट हेलन इनिशियलाइज अवर मैसेज विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, जो हम डाटा टाइप्स में इंटीजर्स लेते हैं, कोई भी डाटा टाइप्स लेते हैं, नंबर्स लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स लेते हैं, स्काई वैल्यूज लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैसेज पास फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स. बिकॉज we know that to create as many objects we can create a number of objects in a single class. That's why we can pass our messages. Now your picture based, be attentive, be careful. Picture based question. First we have a class name. Class name क्या है हमारे पास? क्लास नेम स्टूडेंट, एट्रीब्यूट है स्टूडेंट टाइप, मतलब stu अंडरस्कोर टाइप, बिहेवियर सेट नेम पैरामीटर एंड सेट स्टूडेंट टाइप. ओके, इन ऑब्जेक्ट 1 इज अ एट्रीब्यूट, नेम है अदिति, स्टूडेंट टाइप इज प्राइमरी. ऑब्जेक्ट 2 एट्रीब्यूट्स अनाया, सेकेंडरी. ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 4. ऑब्जेक्ट 3 में भी सेम नेम ले लो, फॉर एग्जांपल अजय, और स्टूडेंट टाइप हायर स्टडी, आपकी बुक में भी है ऑब्जेक्ट 4. ठीक है, ये आपके एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. स्टूडेंट टाइप फर्स्ट अदिति, सेकंड इज अनाया, थर्ड इज अजय, फोर्थ वन इज रेशमा. ओके, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. मुझे फीडबैक में सभी आंसर ओनली टाइप करके भेज देना, ठीक है, ओनली टाइप करके आंसर भेज देना कि केस स्टडी बेस हेडिंग डाल के फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है. इस केस स्टडी के बेस पे, पिक्चर बेस पे हमें बताना व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लास. आराम से सारा कुछ लिखा है. नेम ऑफ द क्लास क्या है, स्टूडेंट है, अजय है, अदिति है कि रेशमा है. नेम ऑफ द क्लास ऊपर देखो आपको हिंट दिया हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट, नेम द एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास. नेम है, स्टू टाइप है, नेम है या बोथ है, बी एंड सी है, ठीक है. नेम द स्टूडेंट यूज इन मेथड. मेथड्स में कौन से यूज हो रहे हैं, मेथड में क्या हो रहा है, सेट्स टू टाइप, सेट नेम, सेट्स टू टाइप या बोथ ए एंड बी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट 3. ऑब्जेक्ट 3 में टू टाइप की वैल्यू क्या है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Why objects is known as instance of a class? Because we know that class is a blueprint from which objects are created. Okay, that's why object is an instance of class, so that's why we call as a object is a instance of class. What are the key components of an object? There are the number of key components of an object. There are different type of data types. Okay, now case study based question.
Case study based question. You are working on a software project that involves creating multiple instance, different product and inventory management system. Each product has properties such as name, price, quantity. Your team decided to create प्रोडक्ट क्लास इन जावा टू रिप्रेजेंट दिस प्रोडक्ट। उन्होंने बोला आप वर्क कर रहे हो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में, ठीक है, उसमें मल्टीपल इंस्टांस डिफरेंट प्रोडक्ट इन्वेंट करने हैं आपने मैनेजमेंट सिस्टम में। हर एक प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, उसका नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, ठीक है। आपकी टीम है वो डिसाइड कर रही है एक प्रोडक्ट क्रिएट करने में, जिसमें प्रोडक्ट की क्लास जो है वो आपने जावा रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। अब देखो द टीम लीड मेंशन दैट अ क्लास इज ऑब्जेक्ट फैक्टर। अब उन्होंने जो मेन लीड मेंशन की है, उन्होंने बोला है क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट फैक्टर है। वी नो दैट क्लास इज ऑब्जेक्ट बिकॉज क्लास इज द ब्लू प्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएट, ठीक है। हम a class is defined once and can be used to create as many object as needed, we know that, okay। now what is the meaning of the given line? A class is a object factor, अभी मैंने आपको डिस्कस करवाया, because we know that class is a blueprint from which objects are created, that why we known as object is an object factory। अब उन्होंने बोला है फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा उन्होंने, नेम डेटा टाइप दैट वुड बी प्रेफर्ड फ्रॉम द इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अब उन्होंने बोला फैक्ट्री जो होगी, इन्वेंट्री क्या होगी, नेम होगी, क्वांटिटी होगी, प्राइस होगा, ऑल ऑफ देम होगा। अब इन्होंने हमें बताया नेम भी है, प्राइस भी है, क्वांटिटी है, तो द आंसर इज ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट उन्होंने बोला है द टीम लीड मेंशन दैट अ क्लास इज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, वही सेम। अब इसका मतलब क्या है? वी नो दैट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम excuse me, we know that in oriented programming we first have to define a prototype that is known as a class। इसमें आप वो भी लिख सकते हो जो मैंने आपको पढ़ाया। next is what is the primary purpose of course in the system? To represent specific course, manage all the course, to store only list here, to manage all the source। now the assertion reason based question, जावा प्रोग्राम, ये आपने होमवर्क पे करने हैं सारे, असर्शन रीजन भी और एमसीक्यू भी, क्वेश्चन और आंसर, फीडबैक क्वेश्चन, assertion reason based question। a java program is made up of classes, assertion reason में बोला each class is made up of some attributes, data members which are predefined data types। yes, both assertion reason are true and r is the correct explanation of a। which of the following called a template used to create object that share common characteristics and behavior? इनमें से कौन सा ऐसी टेम्पलेट है जिसको हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट में और उसके बाद वो शेयर करता है कॉमन करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, ठीक है। आपको ऑप्शन दी गई इंस्टांस, ऑब्जेक्ट, क्लास के मेथड। द आंसर इज क्लास, ठीक है। क्लास जो है वो सेम बिहेवियर शो करता है, ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द रियल एंटिटी? Which of the following is known as a real entity? First is a class. First we have a class. Second is object. Third is method. Fourth is both A and B. Write down which of the following is known as the real entity, class, method, object और both A and B। इसमें से ना बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है। इसमें बोथ बी एंड बी, ओनली जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें बोथ किया हुआ, मैं पहले भी डाला हुआ था ये एमसीक्यू, आपको ए एंड बी कर देते हैं, ठीक है। देखो उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज रियल एंटिटी। रियल एंटिटी क्लास नहीं होती, क्लास में हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स की अगर ऑब्जेक्ट बनते हैं तभी क्लास क्रिएट होगी, क्लास बनाने के बाद ही ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं एक क्लास में।
डिफरेंट क्लास में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, लेकिन जो एक क्लास है उसी का ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ओनली ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रियल एंटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट फीडबैक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड आर यूज्ड टू डिफाइन अ क्लास? Which of the following keywords are used to define a class? Class, public, both A and B, or none of these? Which of the following keywords are used to define a class? डिफाइन अ क्लास ही बोल दिया उन्होंने, तो सिंपल सी बात है। ये भी ना बच्चे बहुत ए एंड बी करते हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। सिंपल उन्होंने बोला है, ये पब्लिक है, वैसे ही पी कैपिटल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स आर यूज्ड टू डिफाइन अ क्लास? तो आंसर इज क्लास। विच फंक्शन और मेथड which function has the same name of the class? Which function has same name of the class? सेम नेम किसके होते हैं? डाटा मेंबर्स के नहीं होते, ठीक है। डाटा मेंबर्स में मेंबर्स दिए जाते हैं कि इसको इसमें डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट के भी नहीं सेम नेम होते। डिफरेंट डाटा टाइप यूज्ड इन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटर, अभी हमने सिंटेक्स भी किया है। तो कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स होते हैं, जब हम उसको पैरामीटर को यूज़ करते हैं तो तब हम सेम नेम ले सकते हैं। जैसे सिस्टम डॉट इन, स्कैनर में एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर दोबारा लिया जाता है ना, तो कंस्ट्रक्टर इज यूज टू द सेम फंक्शन। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट नेम, एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर या ऑल ऑफ दिस? द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर, इनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका नेम, ऑब्जेक्ट नेम, बिहेवियर, एट्रीब्यूट्स या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सारा कुछ यूज़ होता है, नेम भी होता है, एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, बिहेवियर भी होता है, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसकी कंडीशन चेक करते हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, पहले क्लास का नेम लेते हैं, फिर डाटा टाइप को यूज़ करते हैं, फिर वो डाटा टाइप जो आपने यूज़ किया वो कौन से बिहेवियर में, इंट में या फ्लोट में, स्ट्रिंग में, कैर में या फ्लोट में, ठीक है, तो तब हम यूज़ करते हैं। शॉर्ट में है, फ्लोर में है, इंट में है, तो वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं, तो सभी मैंडेटरी है, ठीक है। क्लास का नेम भी ज़रूरी, उसके एट्रीब्यूट भी ज़रूरी है, एट्रीब्यूट मीन्स उसके डेटा टाइप मीन्स जो हम भी लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, तो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एज डेटा मेंबर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज डेटा मेंबर? मेंबर मेथड और डेटा मेंबर दोनों ही मतलब एक ही चीज़ होती है, ठीक है। डेटा मेंबर मान लो एक कार है, ठीक है, उसके आगे जो फीचर्स हैं, उसका स्टीयरिंग हो गया, उसके गियर हो गए, ठीक है, जैसे हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, तो वो उसके मेंबर के मेथड है, उसकी स्पीड क्या है, कितना रन कर रही है सेम सेम टाइम पे वो ट्रैवल कर रही है, तो ये सेम हो गया, ये नहीं आएगा। तो कंस्ट्रक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ डेटा मेंबर? कंस्ट्रक्टर इंस्टांस वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज अ डेटा मेंबर, ठीक है। ये आपके फीडबैक क्वेश्चन थे। ये आपने करके आने हैं होमवर्क पे, सारे के सारे। आपका इस चैप्टर का होमवर्क यही है, चैप्टर नंबर 3, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। डू राइट feedback question, feedback 7 question, answer on homework notebook, question with answer, ओके। तो इस चैप्टर में मेन यही है कि आपने डिफरेंस पढ़ना है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। वाई क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, ओके। वाई क्लास इज नॉन एज द एंटिटी प्रोग्राम। A class consists of characteristics and behavior which are used to create, okay, all the things. Which of the following, which one is the template used to create a common characteristics and behavior? What is the meaning of characteristics? What is the meaning of behavior? ठीक है। बाकी वाई वी यूज द यूजर डिफाइंड फंक्शन, केस स्टडी मैंने आपको करा दी है।
तो ये केस स्टडी के ओनली आपने आंसर लिख के मुझे भेजने हैं फीडबैक में, ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देना। तो डायरी आपकी यही है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर डू राइट फीडबैक 7 क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन और आंसर, नो नीड टू राइट द ऑप्शंस, just you can write question with answer. Okay. Day after tomorrow we done the chapter that is chapter number 4, values and types. So please make sure that you read very carefully values and types. What is the meaning of increment, what is the meaning of decrement. Okay, इसमें हमने प्रोग्राम भी करनी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो इसलिए इसको ध्यान से करना। बाकी आपकी बुक पेज नंबर 48, इसमें क्वेश्चन और विद आंसर दिए, इसको भी थॉरली आपने रीड करना है, ठीक है। एमसीक्यू को रीड करना, केस स्टडी मैंने आपको करा दी है। नेक्स्ट ये इन द रियल वर्ल्ड इफ कार इज अ क्लास देन द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स के आपने नेम लिखने, ठीक है। उसके बाद ये आपके सेशन रीजन है, जावा इज अ मेड अप ऑफ क्लासेस, ईच क्लास इज मेड अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड विच आर प्री डिफाइंड इन टाइप्स। अब नेक्स्ट मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 कराना है, ध्यान से करना, डायरी सभी ने नोट की हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन सिंपली टेल मी इन माय नंबर, ठीक है। बाकी जब हमारा स्कूल ओपन होगा तब मैंने ये फीडबैक के क्वेश्चन अगेन सुनने हैं। बी प्रिपेयर बाय योर सेल्फ। थैंक यू क्लास।